آج کی ویڈیو میں ہم پنجابی راجپوتوں کے ایک قبیلے کی تاریخ بیان کریں گے جسے وٹو کہا جاتا ہے۔ یہ ستلج کی وادی کا ایک اہم راجپوت قبیلہ ہے اور بھٹیوں سے ان کا قریبی تعلق ہے۔ ان کا آبائی وطن بھٹیانہ تھا جو کہ آج کل پنجاب میں فضیلکا، حصار، ہریانہ، سرسا اور فیروز پور کے اضلاع میں اور راجستھان کے چورو اور کنگن نگر اضلاع میں مشتمل تھا۔ یہ لوگ نیم خانہ بدوش تھے اور جانور پال کے گزارا کرتے تھے۔ 1947 میں پنجاب کی تقسیم کے بعد حصار، سرسا، فضیلکا اور فیروز پور کے وٹو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو ISC کی کاسٹ سیریز کا حصہ ہے۔ ہم اب تک الحمدللہ 26 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور مزید 30 قوموں پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اس لیے IHC کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ اپنی قوم پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا ہمارے فیس بک پیج پر میسج کر دیں۔ شکریہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی قوم پر بھی ویڈیو بنائیں۔ تو واپس آتے ہیں پھر سے وٹو قوم کی تاریخ پر۔ دوسرے پنجابی قبائل کی طرح وٹو قبیلے کی تاریخ میں کئی روایتیں پائی جاتی ہیں، لیکن سب کی سب چندر ونشی راجہ جونہر سے ان کی نسبت جوڑتی ہیں۔ یہی راجہ جونہر بھٹیوں کا بھی آباء و اجداد تھا۔ بھٹیانہ میں دونوں قبائل کا آپس میں گہرا تعلق تھا اور یہ جیسلمیر کے بھٹی راجپوتوں کے ساتھ تعلق کا دعویٰ کرتے ہیں۔ 19ویں صدی کے آغاز میں وٹو ستلج کی وادی میں سرسا، من گھمری اور بھاولپور کی ریاست میں آباد تھے۔ ان کے اوپر ڈوگروں کا علاقہ تھا، ان کے نیچے جویا قوم آباد تھی۔ 18ویں صدی کے آخر میں وٹو قوم نے اوکاڑا کو چھوڑ دیا اور سرسا اور رانیا کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اس زمانے میں یہاں بھٹی نوابوں کا راج تھا۔ اس وقت وٹو قوم کے سربراہ کا نام فضل دلیل رانا تھا۔ وٹوؤں کی ایک اور شاخ بہاور نگر میں منتقل ہو گئی۔ ستلج کی وادی میں وٹو سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ ان کی دیکھا دیکھی دیگر قبیلوں نے بھی راوی کے کنارے آباد ہونا شروع کر دیا۔ ناظرین، وٹوؤں اور کچھ بھٹیوں نے بابا فرید کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بابا فرید کے حکم پر سیال دریائے چناب کے کنارے آباد ہو گئے، کھرل راوی کے کنارے آباد ہو گئے، اسی طرح ڈوگر اور وٹو ستلج کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہاں ان قوموں نے اپنا آبائی پیشہ سپاہ گری اور جنگ جوئی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔ سیال، کھرل، ڈوگر اور وٹو تینوں میں زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو راجپوت نہیں سمجھتے۔ پروفیسر محمد طفیل نے وٹو قوم کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وٹو قوم کی تاریخ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ روایات کے مطابق راجہ جونہر بھٹنار میں آباد ہوا، جہاں اس کے 2 بیٹے ہوئے۔ ایک کا نام جے پال اور دوسرے کا راجپال تھا۔ جے پال بھٹیوں کا آباء و اجداد تھا، جبکہ راجپال وٹوؤں کے آباء و اجداد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاک پتن کے مشہور صوفی بزرگ بابا فرید کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے ذرائع نے تجویز پیش کی ہے کہ ہندو مذہب سے اسلام قبول کرنے کا کام فیروز شاہ تغلق کے دور میں ہوا تھا۔ یہ 16ویں صدی کا زمانہ تھا۔
जब फिरोज शाह तुगलक के दौर में कुछ वटुओं ने इस्लाम कबूल किया था। राजा खीवा साहिवाल के करीब हवेली लखा का हुक्मरान था, जो इनके कबीले में पहला मुसलमान था। इसके बाद मशहूर वटू चीफ लखे खान ने इनकी जगह ली। इनकी औलाद लखवेरा वटू के नाम से मशहूर है। इसके बाद वो साहिवाल से सतलज के किनारे फैल गए, जहां से फिर मशरिक से सरसा में आकर आबाद हुए। सरसा में इनकी आबादकारी का आगाज 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल में हुआ था। बाद में ये ओकाड़ा आ गए। 1857 की जंगे आजादी में वट्टू कौम के सरबराह बरतानवी राज के खिलाफ उठ खड़े हुए। 19वीं सदी में सतलज की वादी में इनके तमाम इलाके बरतानवी राज के कब्जे में आ गए। तकसीम हिंद से कबल वट्टू कौम हरियाणा में सरसा तक फैली हुई थी। फाजिल्का में बड़ी तादाद में कॉलोनियां थी, जो अब हिंदुस्तान पंजाब में हैं। ये तमाम कम्युनिटीज 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गई। पाकिस्तान में ये लोग ओकाड़ा, पाकपतन, भावरनगर, कसूर, शेखुपुरा, मुल्तान, ननकाना साहब, फैसलाबाद, खुशाब, भावलपुर और मियाँ वाली में आबाद हैं। मगरबी सल्तनत के खात्मे के बाद मशरिकी वटू बिल आखिर बरतानवी हुक्मरानी में आ गए। मगरबी वटुओं की रियासत भावलपुर दाऊद पटरा के ज़ेरे इक़्तिदार आ गई। पुरानी भावलपुर रियासत में वटुओं की रियासत अपनी असल के मुताबिक यानी फजिल्का सरसा से थोड़ी मुख्तलिफ है। कबीले के आबाओ अजदाद राजा जुनहर थे, जो सियालकोट के भट्टी राजा सुलवाहन की औलाद में से था। वो भटनीर में आबाद था और इसके दो बेटे अचल और बटीरा थे। बटीरा की औलाद में सिद्धू और बरार जाट शामिल हैं। कहा जाता है कि वटुओं ने बाबा फरीद के जरिए इस्लाम कबूल किया था और इसके बाद वटुओं के मशहूर सरबराह लखे खान ने इसकी जगह ली थी। मगरबी वटुओं का इलाका सिद्धू और बारार सिखों के ज़ेरे कब्जा आ गया। बाद में वटुओं ने सिद्धू और बरारों को इस इलाकों से निकाल दिया और इससे भावलपुर मुंसलिक कर दिया। ये इलाका इनका हेडक्वार्टर सलीमानके से लखवीरा तक फैला हुआ था और ये आज़ाद वटू रियासत के मुताबिक जाना जाता था। एक और रवायत के मुताबिक वटू राजा सलवाहन के बेटे पेटल की औलाद थे। ये राजस्थान में भटनीर, जिसे आज हनूम नगर कहा जाता है, उसमें आबाद थे। 12 नस्लों बाद पंज राजपूतों के साथ झगड़े की वजह से ये अधम पंजाब में हिजरत कर गए। वटू तकरीबन सतलज के दोनों किनारों पर काबिज हैं। इनका गालिबन हिंदू भटियों, जोहिया, सिद्धू और बरार सिख जाटों के साथ नस्ली ताल्लुक है। सुलवाहन का एक बेटा भटनीर में आबाद हुआ था। वहां इसे खल, डोगर और जोया मिल गए। वटुओं ने इनसे झगड़ा किया और इनको शिकस्त दी। इनको अपनी नाराजगी फैलाने की वजह से वटू कहा जाता था। 18वीं सदी ईस्वी के अवाइल तक नीली बार, दरियाए रावी और सतलज के दरमियान का इलाका अफरा तफरी की हालत में था, क्योंकि मुगल सल्तनत का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए लखू नामी एक मशहूर वटू ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इसने मुगलों को इस इलाके से निकाल दिया। सतलज की दूसरी तरफ 40 देहात इसके कब्जे में आ गए और इसके बाद गांव के करीब ही एक हवेली बनाई, जिसका नाम हवेली लखा है। मौजूदा गांव अब इस जगह पर मौजूद नहीं है, जहां हवेली लखा वटू है।
नाज़रीन, वटुओं की कमालिया में खरलों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। अहमद यार खान वटू ने सिख रहनुमा हीरा सिंह को शिकस्त दी, लेकिन इसके फौरन बाद फतेह सिंह भंगी ने इस पर हमला किया और अहमद यार को शिकस्त देकर सतलज के उस पार चला गया। तब वटू भंगियों और इनके कायद सरदार बूध सिंह के जेरे असर आ गए। नाज़रीन, वटुओं की मुतअद्दिद ज़ैली गोते हैं, जैसे कि लढोका, अमरोके, ढोके, रत्ते, भट्टे, ढड्डी के, रहमान के और मयाना वगैरह। नाज़रीन, वटू बहुत ही नफीस और मेहमान नवाज कौम है। तकसीम हिंद से कबल फजिल्का में इनकी बहुत सी कॉलोनियाँ थीं, जो आजकल हरियाणा है। इसके अलावा ये सरसा में भी आबाद थे। ये सब कम्युनिटी 1947 में पाकिस्तान हिजरत कर गई। वटू कबीले आजकल ज़िला उकाड़ा, पाकपतन, भावलनगर, शेखुपुरा, मुल्तान और ननकाना साहब में आबाद हैं। नाज़रीन, ये थी वटू कौम की तारीख। इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। आईएससी की कास्ट सीरीज अभी भी जारी है और हमारा मिशन है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत की तमाम बड़ी गोतों या कबीलों की तारीख पर वीडियोस बनाएं। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या फिर आईएससी के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।